Hello everyone, my name is Justice and I'm your English trainer. Today we are diving in the fifth session over conditional sentences if clause, and we have also gone through the applied uh, clauses under this, where we have used unless, when in the same format. And today we are looking for the second conditional. We have covered like there are total four conditional sentences possible in the structured way. Like first, we have seen zero conditional that does not change, that comes with a simple present first if clause, and then simple present the second clause, that is independent clause. And then we have seen uh, first conditional that follows in this structure simple present, and then it will go with will, that is of future of course, or you can also use may, can, you can use must. So will, may, can, must, that can be used. And then we are coming with this second conditional which you're able to see on the screen. In this we will be basically going with if simple past, and then will would be would, because it is past, right? Past of would, will is would, and past of can is could, and past of may is might. So simple past, and then if would be coming with simple past, and then uh, the independent clause would follow the past of will, that is would, or past of can, that is could, past of may, that is might. Okay, so that is the thing. And third conditional we will be looking. Mhm. And we had already seen in first class, I have given you an overview. And uh, third conditional, what we had seen, like firstly we are going with if, and then past perfect, that is had, and then the past of past, in the way like past of will is would, and past of would is would have, right? Would have. Past of could is could have. Past of may is may have. And must, there is no past for must, but there is past of past, that is must have. Past of must is must have. So there you can use those. We'll be looking after this. Okay. So let us look specifically second conditional in more detailed way. So when we are talking about it, we call it is used to talk about unreal or impossible situation in present or future. These structures are used to imagine what would it be like if things were different. Look, l- lastly, when I was explaining, I just told you like it is past of past, but why here I'm adding this impossible situation in present or future? This is very obvious because here when we are talking about unreal situation, that is not part of your present, and that is also not, that is not going to be part of your future, because that never happened. Okay, so that is the reason when we are talking about hypothetical situation, we always talk the if clause under past or past of past. So this is first one, past. And real situation, we already talked, like the fact, the universal truth, general truth that comes with simple present if clause, and then simple present in the independent clause as well, right? And then second, simple present, and then after that it is followed by um, will, can, may, or must. Okay, so in that way we use it. So it is very important for you to understand that real conditions are kept into present or indicating towards future. But when we are talking about hypothetical situations, then it would always fall under past or past of past. Remember that. Okay. So now here we are having example. Look, no, this one is, wait. If I were rich, this thing I told you already. If I were rich, then I would travel around the world. If I were rich, I would travel around the world. Okay. अगर मैं अमीर होता,
अगर मैं अमीर होता तो पूरी दुनिया घूमता, राइट? तो you always use was along with I, but here in this case only were is used. Remember that. Okay. When you are talking about something which is hypothetical, you are not that personality, but you are imagining yourself. काश अगर मैं ये होता, तो then you go with if I were rich, if I were prime minister, if I were president, if I were uh, क्रिकेटर, इफ आई वर, जो भी आपको बनना है, इफ आई वर एन इंजीनियर, इफ आई वर एन आईएएस ऑफिसर। तो अगर मैं ये होता, अगर मैं वो होता, अगर मैं तुम्हारी जगह होता, इफ आई वर यू, अगर मैं तुम होता, तो मैं ये करता, वो करता। तो इन दिस केस ऑल्सो इट कैन बी यूज्ड। सो दिस इज एग्जाम्पल ऑफ सिंपल पास्ट, बट ऑलवेज रिमेंबर आई वुड कम विद वर। ओके, हियर इवन यू आर म्यूट योर सेल्फ एवरीवन। सभी लोग अपने आप को म्यूट कर लेंगे, प्लीज म्यूट योर सेल्फ। Even you are saying for third personality, in that case as well you would use were। अगर वो ये होता, if he were rich, अगर वो अमीर होता, तो here only this is the case where helping verb varies, that does not follow the general rule, and the general rule says like was is used with singular and were is used with plural, right? But in this case always we are using were, remember that। Okay, agar मैं ये होता, you will not use was, if this is the case you will be using I were। Okay, but it does not mean that you will be confused in simple statement like मैं जा रहा था, then I were going or I was going, let me know, was or were, मैं जा रहा था। I'm not talking about if, I'm saying simply मैं जा रहा था। So you must not be confused in that। Only in this case, when we are talking about if conditional, then you will be going with were। Yes, in that case you will be going with was, so don't be confused, okay? So there is only one possible way where you can use were, that is the case of if clause। Okay, अगर मैं रिच होता तो मैं दुनिया घूमता, है ना? यहाँ पर दिस थिंग वी कैन डू, सॉरी, ये हमने वॉच कर लिया, दिस इज रॉन्ग। हियर वी विल बी गोइंग विद had। Okay, if I had, now look once again, if I had a car I could drive you home। अगर मेरे पास एक गाड़ी होती तो मैं तुम्हें घर तक छोड़ देता, छोड़ सकता था, यहाँ पे बेसिकली द एम्फोसिस ऑन द एबिलिटी, राइट? छोड़ देता अगर होता तो यहाँ पे वुड लगता है, यहाँ पे छोड़ सकता था, है ना? अगर मेरे पास गाड़ी होती तो मैं तुम्हें घर पर छोड़ पाता या छोड़ सकता था, मतलब मेरे पास कैपेबिलिटी होती छोड़ने की। सो दिस इज द वे यू विल बी यूजिंग। So what can you use in place of this? Like you are going with past, simple past. Either you are going with this way, like I had a car, I were rich, or you can say, agar translate this, अगर मैं मार्केट जाता तो बड़ा पाव खरीद के लाता। अगर मैं मार्केट जाता, अगर मैं मार्केट जाता, वर वगैरह यूज तो नहीं करेंगे वहां पे, राइट? वर मत यूज कीजिएगा। अगर मैं मार्केट जाता, जैसे, और अगर समझना है तो मैं और इजी कर रहा हूँ, अगर मैं मार्केट गया, ऐसे करेंगे, गया वाला सेंस है ना। अगर मैं मार्केट गया तो बड़ा पाव खरीद लाता है, ये थोड़ा सा बन नहीं रहा है यहाँ पे, लेकिन गया मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आप समझ पाए कि पास्ट इंडेफिनिट है ये। अगर मैं मार्केट जाता, इन द सेकेंड एग्जाम्पल वी शुड यूज वर, नो, इन द सेकेंड एग्जाम्पल वी शुड यूज हैड, बिकॉज वॉज यू रोट इट अर्लियर। अगर मैं मार्केट जाता तो मैं बड़ा पाव खरीद के लाता, गो कर दिया आपने, नहीं, विष्णु जी। एंड सावित्री जी, वेंट टू मार्केट देन आई वुड ब्रिंग अ बर्गर। खरीद लाता बोला है मैंने, तो ब्रिंग क्यों लगा रहे हैं सेंस में? एंड आई थिंक यू आर वेरी ऑब्सेस्ड विद देन। हम देन मॉडर्न इंग्लिश में देन का यूज नहीं करते, बट सही है आपका। um, सावित्री जी, इफ आई वेंट टू मार्केट आई वुड ब्रिंग बड़ा पाव। बड़ा पाव लाता बोला था क्या? अगर लाता बोला था तो ब्रिंग सही है। ओके, खरीद लाता देन परचेज्ड और बॉट। ओके, अगर मैं मार्केट जाता, इफ आई वेंट टू मार्केट आई वुड ब्रिंग, या फिर परचेज, परचेज नहीं, परचेज हो जाएगा, वुड के बाद सेकंड फॉर्म नहीं आती ना, थर्ड फॉर्म आती, फर्स्ट फॉर्म आती है। आई वुड परचेज,
अनामिका जी मैंने गलत बोल दिया था, परचेज नहीं होगा, परचेज होगा। वुड के बाद हमें फर्स्ट फॉर्म आती है। इफ आई वेंट टू मार्केट देन आई वुड परचेज बड़ा पाव। ओके। बर्गर, बर्गर एंड बड़ा पाव, आई थिंक बोथ आर डिफरेंट थिंग, आई डोंट नो। यस, इफ आई वेंट टू मार्केट, नॉट गो, यू विल नॉट बी यूजिंग गो मिनी जी। अगर मैं मार्केट जाता, पास्ट बनाना है ना, सिंपल पास्ट, एंड देन यू विल गो विद वुड। इफ आई वेंट टू मार्केट देन आई वुड ब्रिंग अ बड़ा पाव। देन की जगह आप कॉमा लगाइए। नेक्स्ट। सो दिस इज द वे यू विल बी गोइंग विद। So this is the basic structure you can see. So voice is not clear. Is my voice clear? Voice is breaking. It's once again raining. Okay. Now okay. All right. If I went to the market, I would bring a burger or I would purchase a burger. Okay. So look, this is the structure. You will be following this structure. If simple past, if plus simple past, if के साथ simple past आ रहा है, प्लस वुड वाला फॉर्मेट आ रहा है यहाँ पे, वुड वाला। अगर वुड नहीं होगा तो कुड होगा, कुड नहीं होगा तो माइट होगा। ओके। कैन का कुड, मेक का माइट। सो बेसिकली नॉर्मली तो वुड का ही फॉलो करते हैं, राइट। अगर सिंपली बनाना है तो वुड फॉलो कर लेंगे। इफ आई वर द प्रेसिडेंट, अगर मैं प्रेसिडेंट होता, आई वुड एंड एम्प्लॉयमेंट, तो मैं बेरोजगारी खत्म कर देता। इफ आई वॉन द लॉटरी, देखिए यहाँ पर पास्ट इंडेफिनिट का एग्जांपल दिख रहा है साफ साफ। अगर मैं लॉटरी जीतता, आई वुड बाय अ फरारी, तो मैं एक फरारी खरीद लेता। अब ये देखिए, इफ आई वर यू, अगर मैं तुम्हारी जगह होता, तुम होता, आई वुड स्टार्ट पैकिंग नाउ, तो मैंने पैकिंग शुरू कर दी होती। ओके। इफ आई वर यू, I'd start packing now. So this is the way you'll be doing. Next is make a might करते हैं, तो यहाँ देख पा रहे हैं आप इजिली। इफ प्लस सिंपल पास्ट है एंड देन माइट आ गया। द रिजल्ट ऑफ कंडीशन वुड बी जस्ट अ पॉसिबिलिटी, जब पॉसिबिलिटी की बात करते हैं तो माइट लगा देते हैं कि हाँ शायद ऐसा होगा, शायद ऐसा, ऐसा तो वो चीज। ओके। मे का ही पास्ट फॉर्म है माइट। द रिजल्ट ऑफ द कंडीशन वुड बी जस्ट अ पॉसिबिलिटी। तो फॉर एग्जाम्पल, इफ यू ड्रोव विद ड्राउजी हेड, अगर आप नींद में चलाएंगे, गाड़ी चलाएंगे, यू माइट हैव एन एक्सीडेंट। नहीं चलाएंगे, नहीं सॉरी, अगर आप नींद में गाड़ी चलाते तो शायद आपका एक्सीडेंट हो जाता, है ना। अगर आप नींद में गाड़ी चलाते तो आपका एक्सीडेंट हो जाता, शायद आपका एक्सीडेंट हो जाता। अगर आप नींद में गाड़ी चलाते तो शायद आपका एक्सीडेंट हो जाता, इसकी हिंदी ये होगी। एंड देन इफ यू वर नॉट सो सेल्फिश, अगर आप सेल्फिश नहीं होते, इतने इतने सेल्फिश नहीं होते, यू माइट बी हैप्पियर, तो आप खुश होते। अगर आप इतने सेल्फिश नहीं होते तो आप खुश होते। यहाँ पर एक बात याद रखेंगे, यहाँ पे एक कास्ट वाला सिचुएशन नहीं है, ठीक है, जनरल की सिचुएशन है। ठीक है। कास्ट वाली सिचुएशन आपको पता चल जाएगी, मतलब वहां पे ऐसा होता वैसा होता है ना, डायरेक्ट वैसी बात होगी। नेगेटिव में तो जनरल सिचुएशन है। जनरल सिचुएशन में आप यूज कर सकते हो वॉच का, वहां पे कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। जनरल सिचुएशन में कर सकते हो, लेकिन वो जो सिचुएशन है ना कि काश में ये होता, काश में वो होता, अगर मैं ये होता तो मैं वो करता, तो वो वाले में वर ही यूज करेंगे। ठीक है। ये तो यू के साथ वर आता है, इसके वर लग गया यहाँ पे, है ना। सो आगे बढ़ते हैं, लेट्स मूव फॉरवर्ड। इफ प्लस सिंपल पास्ट प्लस कुड, द मीनिंग ऑफ कुड हियर इज वुड बी एबल टू, बताया था मैंने ऑलरेडी। जब कोई कैपेबिलिटी एबिलिटी की बात की जाएगी तो यहाँ पर हम कुड का यूज कर लेंगे। इफ आई हैड अनदर 1,000 रुपीज, आई कुड बाय द लेटेस्ट एडिशन ऑफ दिस बुक। बाय की स्पेलिंग गलत है यहाँ पे, बी यू वाई कर लेंगे, बाय। आई कुड बाय द लेटेस्ट एडिशन ऑफ दिस बुक। ओके। नाउ लुक, सेकंड एग्जांपल, आई कुड हैव पास्ट, दिस इज पास्ट ऑफ पास्ट एग्जांपल। इस एग्जांपल को अभी
कैंसिल कर लेंगे, या फिर आप समझना चाहें तो इसको पास्ट ऑफ पास्ट का एग्जाम्पल आ गया यहाँ पे। ऑल राइट, तो दिस एग्जाम्पल यू विल नॉट कंसिडर नाउ बिकॉज दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ पास्ट ऑफ पास्ट। ओके। सेकंड, if were plus would, this makes future possibility sound less probable। कि मतलब ये होता तो ऐसा कर देता, ये मतलब सपने की बात हो रही है यहाँ पे, इसलिए। तो सर कुड हैव, ऊपर भी तो हेड था। अच्छा जी। नहीं नहीं नहीं। ओके ओके ओके, आई गॉट इट। एक्चुअली ये गलत नहीं है, मैं थोड़ा सा इसमें मिस्टेक कर गया। यहाँ पर हेड वो वाला नहीं है। थैंक यू वेरी मच अतुल जी, आपने थोड़ा सा मुझे आइडिया दे दिया है। यहाँ पे जो हेड है वो पास्ट इंडेफिनिट वाला ही हेड है। समझिए क्या हेड है, ये हेड वो पास होने वाला हेड है ना। जैसे मेरे पास एक गाड़ी थी, मेरे पास एक घर था, है ना, आई हैड अ कार। मेरे पास एक गाड़ी नहीं थी, आई डिड नॉट हैव अ कार, पढ़ाया था मैंने। तो मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया, मैंने आगे नहीं देख पाया। हैड, हैड के बाद वर्ब थर्ड तो नहीं आई ना, इसका मतलब ये वो वाला नहीं। ठीक है। हैड और हैड में डिफरेंस है, देखिए यहाँ पे। जब हम बात करते हैं चुका था चुकी थी वाला हेड, वो पास्ट परफेक्ट होता है ना। वहां पर हेड के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, बट यहाँ पर हेड के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं आई है। इसका मतलब ये सिंपल पास्ट है हमारा। ओके। सिंपल पास्ट या पास्ट इंडेफिनिट कह लीजिए। मेरे पास अगर 1,000 रुपये होते, अतिरिक्त 1,000 रुपये होते, तो मैं अम, ये बुक का नया वर्जन खरीद लेता, लेटेस्ट एडिशन खरीद लेता। ऐसे ही यहाँ पर थोड़ी सी बस गलती हुई है कि कुड हैव आ गया है, इसको हटा देंगे, बाकी सब सही है ना। क्योंकि मैंने इसको देख लिया तो इसलिए कंफ्यूजन हो गया। ये वाला गलत है, बाकी आपका सही हो जाएगा। और ये हेड लगाया था इसलिए गलती हो गई थी यहाँ पे। ठीक है। तो आई कुड पास, पास कर लेंगे यहाँ पे। आई कुड पास माई CSS एग्जाम इफ आई हैड अनदर मंथ फॉर प्रिपरेशन। ठीक है। यहाँ पर हैड आपका सिंपल पास्ट को डिनोट कर रहा है, याद रखेंगे। हैड भी थर्ड होगा तो वो आपका हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी होगी, तो वो पास्ट परफेक्ट को डिनोट करेगा। और हैड के साथ कोई जनरली नाउन आ गया, है ना, या फिर कोई चीज आ गई, तो वहां पर तो आप ले लेंगे सिंपल पास्ट, है ना। ओके। ये वाला हमने कर लिया था, इफ वर और वर टू। अच्छा ये थोड़ा सा वर टू वाला। अच्छा, वर टू, वॉज टू, एम टू, इज टू, आर टू है, ये वर वाला नहीं है। ये वर टू वाला है। आप लोगों ने को बताया था मैंने कि चलिए पूछ लेता हूँ आपसे। मुझे बाजार जाना है, कैन यू ट्रांसलेट दिस। मुझे बाजार जाना है। इज देयर एनी वन हु कैन ट्रांसलेट दिस। मुझे बाजार जाना है। मुझे बाजार जाना है। आई एम टू गो टू मार्केट, अतुल जी ने लिखा है। ऐसे मैं बोलना चाहूँ, मुझे बाजार जाना था देन। मुझे बाजार जाना था। यस। आई वॉज टू गो टू मार्केट। ठीक है, तो ये वो वाला केस है। ये मैंने यहाँ पर टू नहीं देखा। ये इफ वर टू प्लस वुड, दिस मेक्स अ फ्यूचर पॉसिबिलिटी साउंड लेस प्रोबेबल। इसका मतलब समझते हैं। ठीक है, ये थोड़ा सा एप्लीकेशन बेस्ड वाला है। इफ वर्ल्ड वॉर वर टू ब्रेक आउट, ठीक है, आई वुड एमिग्रेट टू मार्स। कहा जा रहा है कि अगर विश्व युद्ध मतलब होना होगा, जैसे अब थोड़ा सा होना होता तो मैं क्या करता। अगर विश्व युद्ध होता, ऐसे समझ सकते हैं। होना होता इसलिए लगा रहा हूँ क्योंकि जाना है, खाना है, पीना है, खाना था, जाना था, उसमें वर्ड टू वर्ड टू का लगाते थे यूज। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा देखिएगा ध्यान से, ये वर्ड टू क्यों हो रहा है। बस वही वाला कॉन्सेप्ट है जो आपको बताया था, कास्ट वाला, है ना। यहाँ पर एक इमेजिनरी सिचुएशन है, थोड़ी सी ये पॉसिबिलिटी को ही दिखा रहा है एक तरह से। ठीक है। बट ऐसा कुछ हुआ नहीं, आप एक तरह से इमेजिनरी सिचुएशन है कि मान लो अगर वर्ल्ड वर्ल्ड वॉर हो जाती,
तो मैं क्या करता? तो ये इस तरह से। तो अगर वर्ल्ड वॉर होनी होती तो मैं एमिग्रेट कर जाता मार्स के लिए, यानी एमिग्रेशन हो जाता है इनका, ये स्थान बदल लेते, ऐसा कह रहे हैं ये, है ना। ये कहाँ चले जाते, कह रहे हैं कि मैं मार्स पे चला जाता। तो ये चीज, तो वर्ल्ड टू के साथ भी आ सकता है एक एप्लीकेशन, ये भी है। और याद रखेंगे यहाँ पर वर्ल्ड टू का मतलब वर्ल्ड टू ही है, वॉच टू कभी नहीं करेंगे। जैसे वो वाला केस था ना, मैं काश में ये होता, काश में वो होता, इमेजिनरी वाला केस। जनरल केस नहीं है ये, इमेजिनरी वाला केस। कि हाँ, ऐसा अगर मैं हो जाता, अगर वैसा हो जाता, तो वो सारी चीजें। अगर वर्ल्ड वॉर होनी होती तो मैं क्या करता, मेरा डिसीजन ये होता कि मैं मार्स पे चला जाता, मंगल पे चला जाता। ठीक है, तो दिस दिस इज द वे यू कैन डू। दरअसल में ये वही वर्ब वाला ही कॉन्सेप्ट है जो आपको काश वाले में बताया था, कि अगर काश में ये होता तो वही वाला। तो एक बस टू लग गया है और कुछ नहीं। तो यहाँ पर देखेंगे ये सारी चीजें, एक बार टेबल कैन टेक स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। ओके, सो दिस थिंग वी हैव कवर्ड। अब बात आज बारी आती है आपकी प्रैक्टिस की। लेट अस नाउ प्रैक्टिस। तो मुझे बताइएगा सिंपल पास्ट में वुड का एग्जांपल। आप दो एग्जांपल टाइप कीजिए सिंपल पास्ट में वुड का। सिंपल पास्ट में वुड का दो एग्जांपल टाइप कीजिए जल्दी से फटाफट, वुड के साथ कुछ भी बना लीजिए। आप वर वाला भी लगा सकते हैं यहाँ पे, सिंपल पास्ट में वर वाला भी यूज हो जाएगा, है ना। ठीक। अगर मैं ये होता, अगर मैं वो होता, तो मैं ये करता, वर वाला भी आ जाएगा। आई वुड लाइक प्ले क्रिकेट, आई वुड ड्रिंक वाटर। अरे सिंपल पास्ट में मैंने बोला इफ के साथ बनाना है। इफ सिंपल पास्ट प्लस वुड, वुड लगेगा ना, इसलिए वुड बोल दिया। टू इमेजिन वुड इट बी लाइक इफ थिंग्स वर डिफरेंट। अगर ऐसा, if she studied more, she would pass the exam, correct. If we had more time, we would visit the garden, correct Nandini Sharma ji. Anamika ji, if I were rich, I would help poor. Nice. I want two examples from all of you. If simple past and then would वाला concept, अगर would वाला कर लेंगे तो might वाला भी हो जाएगा, could वाला भी हो जाएगा। You're unable to create your own example. Okay, I'm giving you a statement, just translate. अगर मैं बीमार होता तो विद्यालय नहीं जाता। फिर से हाइपोथेटिकल सिचुएशन है। अगर मैं बीमार होता, याद रखिएगा आई के साथ क्या लगाना है। आशिका सुल्तान जी, इफ आई वर प्राइम मिनिस्टर आई वुड एंड द करप्शन, बढ़िया। इफ सी वर्कड करेंगे, वर्कड हार्ड, शी वुड स्कोर गुड मार्क्स। इफ आई वर ऑफिसर आई वुड रिमूव ऑल करप्शन, होगा वुड कीजिए, आप वुड नहीं लगाया। पास्ट सिंपल पास्ट आएगा तो उधर आपको वुड लगाना होगा। विष्णु जी, आपने कॉमा भी लगाया, देन भी लगाया, पॉसिबल नहीं है। और पहली बात आपने आई वुड पहले कर दिया। आप करेंगे यहाँ पर वुड हटा देंगे, ठीक है। और यहाँ पर देन आई क्या किया, 80 का शॉर्ट। और देन आई, ये नॉट नहीं होगा, वुड नॉट यहाँ पे आ जाएगा। अतुल जी, इफ आई वर कार, नहीं इफ आई वर कार नहीं हो सकता, इफ आई हैड कार होगा। आई वर कार का मतलब ये हो गया, अगर अगर मैं कार होता तो मैं लॉन्ग ड्राइव पे जाता। आप कार क्यों होंगे? वो कार मतलब ये समझ में नहीं आया मुझे। आप खुद को कार कहना चाह रहे हैं या मिस्टेक से हो गया, मेरे पास कार हो। अच्छा, खुद को कार कहना चाह रहे हैं। चलिए तो ठीक है, फिर बढ़िया है। बच्चों वाली बातें हो गई, ये बच्चे ये कहते हैं ना कि हम ये कार होते वो होते। अगर एक कविता है, अगर पेड़ चलते होते कितने मजे हमारे होते, वो वाली।
अच्छा ये वाला कीजिए, अगर पेड़ चलते होते, ये वर्ड टू में हो जाएगा। अगर पेड़ चलते होते कितने मजे हमारे होते, इसका ट्रांसलेट कीजिए। अगर पेड़ चलते होते कितने मजे हमारे होते। वर्ड टू में भी कर सकते हैं, और ये पास्ट ऑफ पास्ट में भी हो जाएगा। होता कौन सा हो जाएगा। अगर पेड़ चलते होते कितने मजे हमारे होते। इफ आई वॉज सिक आई वुड नॉट गो टू स्कूल, करेक्ट। आई ऑल्सो कम फॉर लॉन्ग ड्राइव। Kamla ji, if I were sick, I would not go the school. Go to school कीजिए। If the trees कीजिए, trees पेड़ चलते होते, the tree किया। If the trees were to walk करेंगे ना, were to भूल गए आप यहाँ पे, वर के बाद डायरेक्ट वॉक तो आ ही नहीं सकता, है ना। चलते होते बोला है ना, चलते होते, इसलिए यहाँ पर वर टू वॉक, वी वुड बी सो हैप्पी। we how would we enjoy, अनामिका जी ने क्या है, if trees were to move करेंगे, how would we enjoy, कितने मजे हमारे होते। सेंस में बनाइए। if trees was walk, नहीं गलत है, were to walk होगा। we would very happy, नहीं, we would भी कर सकते थे आप सेंस में। if I were ill I would not go to school, correct। if the trees moved how would we enjoy। आपने नॉर्मल बनाने की कोशिश की है, आशिका जी ने अभी थोड़ा सा किया। if trees were to move how would we enjoy, how would we enjoy, अब इसमें आपने कोई सिंबल नहीं लगाया आगे। हम्म, ये क्वेश्चन बन जाएगा एक्चुअली में। थोड़ा सा सेंस में इसको लीजिएगा। कितने मजे हमारे होते, मतलब ये शो हो रहा है कि हम बहुत ज्यादा मजे में होते, बहुत ज्यादा खुश होते, ऐसे। या फिर आप इसको चाहें तो एक्सक्लेमेशन मार्क्स के साथ भी बना सकते हैं। तो ये क्वेश्चन मेरा फिर से, देन सोचिए और बनाइए। मैंने बोला है, अगर पेड़ चलते होते कितने मजे हमारे होते। सोचिए और समझिए, बनाइए। अगर पेड़ चलते होते कितने अगर पेड़ चलते होते कितने मजे हमारे होते। आप चाहें तो इसमें होता कॉन्सेप्ट भी लग जाएगा, बट वो अभी पढ़ाया नहीं। वी वुड हैव एंजॉयड, वी वुड एंजॉय लॉट, ठीक है। हाउ फन, हाउ मच फन कर दीजिए, बहुत बढ़िया हो जाएगा आपका। लेकिन आपने वर्ड टू नहीं लगाया आपने। इफ ट्रीज वर टू वॉक हाउ मच फन फन वी वुड, होते होते होना की क्या होती है, पास होना की, हैव लगा दीजिए। इफ ट्रीज वर टू वॉक वुड इट बी, would it be much fun? If the trees were to walk, we would have too much fun। हाँ ये सही है, साइंस के आधार। और अगर आप एक्सक्लेमेशन बनाना चाहें तो वैसे बना देंगे, हाउ मच फन वी वुड हैव। रिपीट टू मिस्टेक, they put, what is this they put, if the trees were to walk we would have टू टी डबल ओ वाला टू कीजिए, टू मच फन, व्हाट मिस्टेक आई डिड। अच्छा अनामिका जी आपने लिखा था इफ ट्रीज, ट्रीज में स्पेलिंग भी सही कर लीजिए पहले तो। वर टू वॉक करेंगे, वर वॉक नहीं, वर के बाद वॉक कभी आ ही नहीं सकता। वर टू वॉक, इफ ट्रीज वर टू वॉक हाउ मच फन फन वी वुड हैव, ठीक है। वर टू में बन जाएगा ये हेड में भी बन जाएगा। संगम जी ने क्या है, ट्रीज कुड वॉक हाउ मच फन वी वुड हैव, नहीं कुड वाला नहीं बनेगा, कुड वाला नहीं बन पाएगा। आर यू यूजिंग गूगल ट्रांसलेट, संगम जी। यूज नहीं कर पा रहे हैं आप।